غزوہ خندق اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور یادگار واقعہ ہے جو رسول اللہ کے دور میں پیش آیا۔ یہ غزوہ 5 ہجری 627 عیسوی میں ہوا اور اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں مختلف قبائل اور گروہوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف اتحاد کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی بنیاد رکھنے کے بعد مسلمانوں کو مسلسل دشمنی اور مخالفت کا سامنا تھا۔ مکہ کے قریش، یہود اور دیگر دشمن قبائل نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ غزوہ احد کے بعد قریش نے مسلمانوں کو ایک اور موقع پر شکست دینے کا منصوبہ بنایا اور اس بار انہوں نے مختلف عرب قبائل اور مدینہ کے یہودی قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہود کے بنو نذیر قبیلے کو مدینہ سے نکالے جانے کے بعد وہ خیبر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے قریش اور دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور انہیں جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح قریش، بنو نذیر، بنو غطفان اور دیگر قبائل نے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کی حفاظت کا منصوبہ۔ جب نبی کریم کو اس بڑی فوج کے مدینہ کی طرف بڑھنے کی خبر ملی تو نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ کی حفاظت کیسے کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو کہ فارس، موجودہ ایران، سے تعلق رکھتے تھے، نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے گرد خندق کھودی جائے تاکہ دشمنوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ یہ ایک نیا اور غیر معمولی حربہ تھا جو عرب میں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن نبی کریم نے اس مشورے کو قبول کیا۔ خندق کی کھدائی۔ مدینہ کے شمالی جانب سے دشمن کا حملہ متوقع تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نبی کریم خود بھی اس خندق کی کھدائی میں حصہ لیتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی اس کام میں بھرپور حصہ لیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران شدید سردی، بھوک اور تھکن کے باوجود صحابہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن خندق کھودتے ہوئے ایک بڑی چٹان سامنے آئی جو کہ بہت سخت تھی۔ صحابہ نے رسول اللہ کو اس کی خبر دی۔ نبی کریم خود وہاں تشریف لائے اور اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر چٹان پر مارا، جس سے چٹان ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر نبی کریم نے پیشین گوئی فرمائی کہ مسلمانوں کو فارس اور روم کی عظیم سلطنتوں پر فتح حاصل ہوگی۔ دشمن کی فوج کا مدینہ پہنچنا۔ دشمن کی فوج جب مدینہ پہنچی تو وہ خندق دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ان کے لیے ایک نئی اور غیر متوقع رکاوٹ تھی۔ قریش اور ان کے اتحادیوں نے خندق پار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ خندق کی وجہ سے دشمن مسلمانوں کے قریب نہ آ سکے اور وہ خندق کے دوسری جانب ہی رہ گئے۔ خندق کے پار سے دشمنوں نے تیروں اور پتھروں سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے۔ سردی اور بھوک سے دشمنوں کی حالت خراب ہونے لگی اور وہ مایوس ہو گئے۔ بنو قرظہ کی غداری۔ مدینہ کے جنوب میں یہودی قبیلہ بنو قرظہ آباد تھا، جو کہ مدینہ کے دفاع کے معاہدے کے تحت مسلمانوں کا حلیف تھا۔ لیکن اس نازک موقع پر بنو قرظہ نے غداری کی اور قریش کے ساتھ مل گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا کیونکہ اب دشمن دو طرف سے حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ رسول اللہ کو جب اس غداری کی خبر ملی تو نبی کریم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنو قرظہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے بات کرے۔ لیکن بنو قرظہ نے نہ صرف معاہدے کو توڑا بلکہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا اعلان بھی کر دیا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو غطفان سے تھا، جو کہ ایک بڑے قبیلے کا حصہ تھے، اور وہ قریش اور دیگر عرب قبائل کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ پہلے سے مسلمان نہیں تھے بلکہ قریش کے حلیف تھے اور مدینہ پر حملے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت اور سچائی ڈال دی۔ غزوہ خندق کے دوران اللہ کی مرضی سے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ رات کے وقت خفیہ طور پر رسول اللہ کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے نبی کریم سے کہا کہ وہ ابھی تک اپنے قبیلے اور اتحادیوں کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا اور وہ دشمن کے خیمے میں جاسوسی کرنے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ نے ان کے اخلاص اور ایمان کی پختگی کو سراہا اور انہیں دشمن کی صفوں میں جا کر مسلمانوں کے لیے مفید معلومات حاصل کرنے کا حکم دیا۔
हज़रत नईम बिन मसूद की हिकमत अमली। हज़रत नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत होशियारी से काम लिया। वो पहले बन्नू कर्जा के पास गए और उन्हें कुरैश के खिलाफ भड़काया। उन्होंने कहा कि कुरैश सिर्फ अपने मुफाद के लिए जंग कर रहे हैं और अगर वो हार जाएंगे तो मदीना छोड़कर चले जाएंगे, जबकि बन्नू कर्जा का मदीना में रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुसलमान उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बेहतर है कि बन्नू कर्जा कुरैश की हिमायत छोड़कर मुसलमानों से सुलह कर ले। इसके बाद हज़रत नईम बिन मसूद कुरैश के पास गए और उन्हें बन्नू कर्जा की तरफ से शक में डाल दिया। उन्होंने कुरैश को बताया कि बन्नू कर्जा ने मुसलमानों से खुफिया तौर पर सुलह कर ली है और वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस बात ने कुरैश के दिल में शक और खौफ पैदा कर दिया। दुश्मन की सफ़ों में इख्तिलाफ। हज़रत नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत अमली ने दुश्मन की सफ़ों में शदीद इख्तिलाफ और बदएतिमादी पैदा कर दी। कुरैश और उनके इत्तेहादियों के दरमियान इत्तेहाद टूट गया और वो एक दूसरे पर शक करने लगे। इस बदएतिमादी और इख्तिलाफ ने दुश्मन की कुव्वत को कमजोर कर दिया और वो मदीना पर हमला करने में नाकाम हो गए। हज़रत नईम बिन मसूद का ईमान। ये वाक़या हज़रत नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान की पुख्तगी और अल्लाह पर भरोसे की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर मुसलमानों की मदद की और दुश्मन की सफ़ों में इख्तिलाफ और खौफ पैदा किया। उनकी ये खिदमत और ईमान की पुख्तगी इस्लामी तारीख में एक रोशन मिसाल के तौर पर दर्ज है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान का दुश्मन के लश्कर में जासूसी का वाक़या। ग़ज़वा खंदक के दौरान एक रात रसूल अल्लाह ने सहाबा किराम से फरमाया कि कौन है जो दुश्मन के लश्कर में जाकर उनकी खबरें ले आए। इस पर हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर इस खिदमत का बेड़ा उठाया। वो रात के अंधेरे में चुपके से दुश्मन के लश्कर में दाखिल हुए और वहां की गुफ्तगू सुनकर मुसलमानों को इत्तिला दी। इस वक्त दुश्मन के लश्कर में इख्तिलाफात और बदएतिमादी का आलम था, जिससे मुसलमानों की फतह की राह हमवार हुई। हज़रत सलमान फारसी और खंदक खोदने का मशवरा। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा खंदक में एक अहम किरदार अदा करने वाले सहाबी हैं। जब मुसलमानों को कुरैश के बड़े लश्कर की आमद की खबर मिली तो हज़रत सलमान ने मशवरा दिया कि मदीना के गिर्द खंदक खोदी जाए ताकि दुश्मन के हमले से महफूज रह सके। ये हरबा अरब में नया था और कुरैश ने इसका सामना पहले कभी नहीं किया था। खंदक की हिकमत अमली ने मुसलमानों को कुरैश के बड़े लश्कर के मुकाबले में कामयाबी दिलाई। हज़रत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब का बहादुरी का वाक़या। ग़ज़वा खंदक के दौरान औरतें और बच्चे एक किले में महफूज थे। एक मौके पर किले के करीब एक यहूदी जासूस पहुंच गया जो औरतों और बच्चों की सूरत-ए-हाल का जायजा लेना चाहता था। हज़रत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा, जो नबी करीम की फूफी थी, ने इस जासूस को देखकर फौरन कार्रवाई की और इसे कत्ल कर दिया ताकि दुश्मन को मुसलमानों की कमजोरी का अंदाजा न हो। हज़रत साद बिन माज की शहादत। ग़ज़वा खंदक के दौरान हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी हो गए थे जब एक तीर उनकी रग में लगा। वो ज़ख्म इतना गहरा था कि वो इससे जामर न हो सके। हज़रत साद की शहादत पर नबी करीम बहुत गमगीन हुए और फरमाया कि साद की मौत से अर्श भी हल गया। हज़रत साद की शहादत मुसलमानों के लिए एक बड़ा सदमा थी, लेकिन उनका सब्र और ईमान मुसलमानों के लिए हमेशा मशल्ला रहेगा। खंदक में नबी करीम की मजिज़ाती क़ुव्वत। खंदक की खुदाई के दौरान सहाबा किराम को एक सख्त चट्टान का सामना हुआ जिसे तोड़ना मुश्किल था। नबी करीम ने दुआ की और फिर अपने हाथ से कुदाल मारा, जिससे चट्टान टूट गई और चमकदार रोशनी निकली। नबी करीम ने फरमाया कि ये रोशनी मुसलमानों की मुस्तकबिल की फतूहात की बशारत है, जिनमें ईरान, रोम और यमन शामिल हैं। ये मौजिज़ा सहाबा किराम के लिए बड़ी हौसला अफजाई का बाइस बना। ग़ज़वा खंदक के दौरान सहाबा किराम का भूख से मुकाबला। ग़ज़वा खंदक के दौरान भूख और इफलास का आलम था, क्योंकि दुश्मन के मुहासरे की वजह से मदीना में अशिया खुर्दोनोश की किल्लत हो गई थी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भूख से निमटने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर अपनाई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन रसूल अल्लाह के पास आए और उनसे अपनी घर की मामूली सी खुराक का जिक्र किया। नबी करीम ने इस थोड़ी सी खुराक में बरकत की दुआ की और फिर अपने सहाबा को बुलाया। मजिज़ाती तौर पर वो थोड़ी सी खुराक तमाम सहाबा के लिए काफ़ी हो गई।
ये वाक़या सहाबा के ईमान और नबी करीम की दुआ की बरकत का एक जिंदा सबूत है। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल का हज़रत आयशा की अफ़वाह को ख़त्म करना। ग़ज़वा खंदक के दौरान एक और वाक़या हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक़ है। जब मदीना वापसी के दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे रह गईं और हज़रत सफ़वान उन्हें अपने ऊँट पर सवार करके वापस ले आए तो मुनाफ़िकीन ने उनके ख़िलाफ़ अफ़वाहें फैलाईं। हज़रत सफ़वान ने इन अफ़वाहों को यकसर मुस्तरद करते हुए हज़रत आयशा की इज़्ज़त व एहतराम का भरपूर दिफ़ा किया। बाद में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत आयशा की बरात नाजिल की और मुनाफ़िकीन की साजिशों को नाकाम बना दिया। नबी करीम का सहाबा के साथ खंदक की खुदाई में शिरकत करना। ग़ज़वा खंदक की तैयारी के दौरान नबी करीम ने खुद अपने हाथों से खंदक खोदने में शिरकत की। नबी करीम ने अपने सहाबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, हालांकि आप अल्लाह के नबी थे और चाहीं तो ये काम दूसरों के हवाले कर सकते थे। इस अमल ने सहाबा किराम के हौसले बुलंद किए और उन्हें यह सबक दिया कि क़यादत का असल जौहर अपने साथियों के साथ मिलकर मुश्किलात का सामना करना है। मुसलमानों की खंदक के पार जाने की कोशिश। ग़ज़वा खंदक के दौरान दुश्मन के लश्कर ने कई बार खंदक के पार जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। मुसलमानों ने खंदक के दिफा के लिए दिन रात एक कर दिया और दुश्मन को खंदक पार करने नहीं दिया। एक मौके पर उमरो बिन अब्विद, जो कुरैश का मशहूर पहलवान था, खंदक पार करने में कामयाब हो गया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे दो बद्दू लड़ाई में शिकस्त दे दी। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का दुश्मन के हमले को नाकाम बनाना। ग़ज़वा खंदक के दौरान कुरैश के चंद जंगजू खंदक के कमज़ोर मकामात पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम की इजाज़त से इन जंगजुओं का ताक़ुब किया और उनके हमले को नाकाम बना दिया। हज़रत ज़ुबैर की शुजाअत और दिलेरी ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए और वो खंदक पार करने की मज़ीद कोशिश से बाज आ गए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का मजज़ाती खाना। ग़ज़वा खंदक के दौरान मदीना में खाने पीने की किल्लत हो गई थी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम और चंद सहाबा को अपने घर खाने पर मदऊ किया। हज़रत जाबिर के घर में सिर्फ थोड़ी सी खुराक मौजूद थी, लेकिन रसूल अल्लाह ने इस खुराक में बरकत की दुआ की और फिर अपने सहाबा को बुलाया। मजज़ाती तौर पर वो थोड़ी सी खुराक तमाम सहाबा के लिए काफ़ी हो गई। ये वाक़या नबी करीम की दुआओं की बरकत और अल्लाह के मुजिज़े का मुँह बोलता सबूत है। हज़रत अबू तलहा का ईमान अफरोज़ वाक़या। ग़ज़वा खंदक के दौरान एक रात हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम की हिफाजत के लिए पहरा दे रहे थे। वो इतनी शिद्दत से सर्दी और भूख का शिकार थे कि उनके जिस्म कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से गफलत न बरती और पूरी रात नबी करीम की हिफाजत करते रहे। ये उनके ईमान की मजबूती और नबी करीम के साथ बेपनाह मोहब्बत की मिसाल है। हज़रत आयशा का वाक़या बरात। ग़ज़वा खंदक के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर मुनाफ़िकीन ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। रसूल अल्लाह इस इल्ज़ाम से बहुत परेशान हुए और हज़रत आयशा को भी शदीद दुख पहुंचा। ताहम अल्लाह ताला ने सूरा नूर में हज़रत आयशा की बरात नाजिल की और मुनाफ़िकीन के झूठे इल्ज़ामात को बेनकाब किया। इस वाक़या ने मुसलमानों को ये सिखाया कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है और झूठे इल्ज़ामात से बचाता है। कबीला ग़तफ़ान का लूट जाना। ग़ज़वा खंदक में कबीला ग़तफ़ान, जो कुरैश के साथ मिलकर मदीना पर हमला करने आया था, अपने कबीले में इख्तिलाफ़ात और मुसलमानों की मजबूत हिकमत अमली के बाइस जंग से दस्तबरदार हो गया और वापस लूट गया। इसका असर कुरैश की फ़ौज पर भी पड़ा और उनके हौसले पस्त हो गए। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह की मदद से मुसलमान हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हज़रत अबू उबैदा बन जर्राह का शुजाअत का मुज़ाहरा। ग़ज़वा खंदक के दौरान जब कुरैश और उनके इत्तेहादियों ने खंदक की कुछ कमज़ोर जगहों पर हमला करने की कोशिश की, तो हज़रत अबू उबैदा बन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी शुजाअत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया। दुश्मन ने खंदक के कुछ हिस्से में पाल बनाए ताकि वो खंदक पार कर सके। हज़रत अबू उबैदा ने अपने जवान साथियों के साथ मिलकर उन हमलों को नाकाम बनाया। उनकी ये बहादुरी मुसलमानों के हौसले को बुलंद करने में अहम किरदार अदा करती है। कुरैश की नाकामी की वजह से उनकी वापसी।
ग़ज़वा खंदक के दौरान जब कुरैश ने देखा कि मुसलमानों की दिफाई हिकमत अमली कामयाब हो रही है और खंदक अबूर करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, तो कुरैश के लश्कर में तंगदस्ती और मायूसी बढ़ गई। बहुत से सिपाही बीमार हो गए और सर्द मौसम में मुश्किलात का सामना करने लगे। इसके साथ ही कुरैश के दरमियान इख्तिलाफात भी उभरने लगे, जिसकी वजह से कुरैश ने आखिरकार मदीना को छोड़ने का फैसला किया। उनकी वापसी मुसलमानों के लिए एक बड़ी फतह साबित हुई और ये दुश्मन की कमजोरी की अलामत थी। हजरत बिलाल बिन रुबा की वफादारी। ग़ज़वा खंदक के दौरान हजरत बिलाल बिन रुबा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि एक साबिक गुलाम और रसूल अल्लाह के करीबी सहाबी थे, ने अपनी वफादारी और कुर्बानी का आला मिसाल कायम किया। उन्होंने खंदक के दिफा में भरपूर हिस्सा लिया और इंतहाई मुश्किल हालात में भी अपने ईमान को मजबूत रखा। उनकी मेहनत और कुर्बानी मुसलमानों के लिए मशल बनी और उसने साबित किया कि ईमान की सच्चाई और वफादारी की कोई कीमत नहीं। कुरैश की सिपा सालार उमरो बिन अब्विद की शिकस्त। ग़ज़वा खंदक के दौरान कुरैश के मशहूर पहलवान उमरो बिन अब्विद ने खंदक अबूर करने की कोशिश की और मुसलमानों के सफ़ों में घुसने की कोशिश की। उमरो का ये अमल मुसलमानों के लिए एक संगीन चैलेंज था। ताहम हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमरो को दो बद्दू लड़ाई में शिकस्त दी। इस लड़ाई ने कुरैश के हौसले को मजीद पस्त कर दिया और मुसलमानों की फतह के इम्कानात को रोशन किया। मुसलमानों का दुश्मन के पीछे से हमला। ग़ज़वा खंदक के दौरान मुसलमानों ने दुश्मन के मुहासरे को तोड़ने के लिए एक मंसूबा बनाया। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की मशवरे पर मुसलमानों ने खंदक की खुदाई के साथ साथ दुश्मन के पीछे से हमला करने की तैयारी की। इस हिकमत अमली के जरिए मुसलमानों ने कुरैश और उनके इत्तेहादियों को दबाव में रखा और उन्हें मदीना पर मजीद हमले से रोक दिया। दुश्मन की वापसी और मदीना की कामयाबी। ग़ज़वा खंदक के बाद कुरैश और उनके इत्तेहादियों ने मदीना को छोड़ने का फैसला किया। इसका सबब मदीना में मुसलमानों की मजबूत दिफाई हिकमत अमली, खंदक की कामयाबी और दुश्मन की दाखिली मुश्किलात थी। मुसलमानों की ये कामयाबी एक तारीखी लम्हा थी और उसने इस्लामी रियासत की बका और उसकी दिफाई सलाहियतों को साबित किया। सरदारों का इजलास और फैसला। ग़ज़वा खंदक के दौरान नबी करीम ने अपने सहाबा के साथ मुशावरत की ताकि दुश्मन के हमलों का मुअस्सिर तरीके से मुकाबला किया जा सके। इस मुशावरत में मुख्तलिफ सहाबा ने अपने तजुर्बात और मशवरे पेश किए और नबी करीम ने उनके मशवरों को संजीदगी से लिया। इस मुशावरत के नतीजे में मुसलमानों ने खंदक खोदने का फैसला किया और ये फैसला मुसलमानों की फतह की बुनियाद बना। खंदक के दिफा में हजरत अली बिन अबी तालिब की बहादुरी। ग़ज़वा खंदक के दौरान हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने खंदक की दिफाई लाइन पर बहादुरी से लड़ाई की। उन्होंने दुश्मन के हमलों को पसपा करने में अहम किरदार अदा किया और कई बार दुश्मन के हमलों का मुअस्सिर जवाब दिया। हजरत अली की बहादुरी ने मुसलमानों के हौसले को बढ़ावा दिया। खंदक के दिफा में औरतों का किरदार। ग़ज़वा खंदक के दौरान ख्वातीन भी मुसलमानों की मदद के लिए पेश रही। उन्होंने खंदक के अतराफ में मौजूद खैमों में रहकर अपने शोहरों और बच्चों के लिए खुराक तैयार की और उन्हें हौसला दिया। ख्वातीन की ये खिदमात मुसलमानों की कामयाबी में एक अहम जिज़्व थी। ग़ज़वा खंदक के बाद कुरैश की शर्मिंदगी। ग़ज़वा खंदक के बाद कुरैश और उनके इत्तेहादियों को मदीना की शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनकी कोशिशें नाकाम हुई और उन्हें मदीना की फतह के इम्कानात का सामना करना पड़ा। कुरैश की शिकस्त और उनकी वापसी मुसलमानों की फतह की अलामत थी और उसने मदीना के दिफाई सलाहियतों को साबित किया। अल्लाह की मदद और दुश्मन की शिकस्त। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई और दुश्मन के दिलों में खौफ डाल दिया। एक रात अल्लाह ताला ने शदीद आंधी और तूफान भेजा जिसने दुश्मनों के खैमे उखाड़ दिए और उनके दिलों में खौफ भर दिया। ये हालात देखकर दुश्मनों ने मदीना पर हमला करने का इरादा तर्क कर दिया और वापस लूट गए। ग़ज़वा खंदक के बाद। ग़ज़वा खंदक के बाद मदीना में अमन कायम हो गया। बन्नू क़र्ज़ा की गद्दारी के बाद रसूल अल्लाह ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें उनके जुर्म की सजा दी गई। इसके बाद मदीना के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का जोर टूट गया और मुसलमानों की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। ग़ज़वा खंदक से हासिल होने वाले असबाब।
غزوہ خندق کا واقعہ مسلمانوں کے لیے کئی اہم اسباق فراہم کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ۔ غزوہ خندق نے ثابت کیا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ حکمت عملی اور مشاورت۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تھا، جسے رسول اللہ نے قبول کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں مشاورت اور حکمت عملی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ صبر و استقامت۔ غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، لیکن انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھا۔ ان کا یہ ایمان اور عزم انہیں فتح کی طرف لے گیا۔ اتحاد کی قوت۔ مسلمانوں کا اتحاد اور ان کا آپس میں بھائی چارہ بھی اس جنگ میں فتح کا سبب بنا۔ دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن ان کے دلوں میں اتحاد اور اتفاق تھا جس نے انہیں کامیابی دی۔ غداری کا انجام۔ بنو قرظہ کی غداری نے انہیں عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ غداری اور دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ غزوہ خندق اسلامی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ صبر، استقامت، حکمت عملی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ایمان اور عزم کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور فتح و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔